السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 21، قسط نمبر 21، بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ بدر کا مارکہ مسلمان اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں مسلمانوں کی فتح مبین حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس مارکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کی غلبہ و سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و الم سے جل بھن رہے تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینہ میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز و مساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے، تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینہ کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور راہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی کل کو اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینہ میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حساب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، دیسیہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے: ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضرور ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینہ کے چار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے، اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز
क़याम फरमा कर मदीना पलट आई। ये ग़ज़वा शवाल 2 हिजरी में बदर से वापसी के सिर्फ 7 दिन बाद पेश आया और इस ग़ज़वे के दौरान सबा बिन अरफता को और कहा जाता है कि इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीने का इंतज़ाम सौंपा गया था। जंग बदर में शिकस्त खाकर मुशरिकीन गुस्से से बेकाबू थे और पूरा मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हांडी की तरह खोल रहा था। बिलाखिर मक्के के 2 बहादुर जवानों ने तय किया कि वो अपनी दानिश में इस इख्तिलाफ व शिकाक की बुनियाद और इस ज़िल्लत और रसवाई की जड़ नाउज़ु बिल्लाह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा कर देंगे। चुनांचे जंग बदर के कुछ ही दिनों बाद का वाक़या है कि उमैर बिन वहब जोहमी जो कुरैश के शैतानों में से था और मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को अज़ियतें पहुँचाया करता था, और अब इसका बेटा वहब बिन उमैर जंग बदर में गिरफ़्तार होकर मुसलमानों की कैद में था। इस उमैर ने एक दिन सफ़वान बिन उमैया के साथ हतीम में बैठकर गुफ्तगू करते हुए बदर के कुएं में फेंके जाने वाले मकतूलों का जिक्र किया। इस पर सफ़वान ने कहा, खुदा की कसम इनके बाद जीने में कोई लुत्फ़ नहीं। जवाब में उमैर ने कहा, खुदा की कसम तुम सच कहते हो। देखो खुदा की कसम अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता जिसकी अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं और अहल व अयाल ना होते जिनके बारे में मुझे अंदेशा है कि मेरे बाद ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता और उसे कत्ल कर डालता, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जाने की एक वजह मौजूद है, मेरा बेटा उनके यहाँ कैद है। सफ़वान ने सूरत हाल को गनीमत समझते हुए कहा, अच्छा चलो तुम्हारा कर्ज मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, इसे तुम्हारी जानब से अदा कर दूँगा और तुम्हारे अहल व अयाल मेरे अहल व अयाल हैं, जब तक वो मौजूद रहेंगे मैं इनकी देखभाल करता रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई चीज़ मौजूद हो और इनको ना मिले। उमैर ने कहा, अच्छा तो अब मेरे और अपने इस मामले को सीगा इराज में रखना। सफ़वान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद उमैर ने अपनी तलवार पर सान रखाई और जहर आलूद कराई, फिर रवाना हुआ और मदीना पहुँचा। लेकिन अभी वो मस्जिद के दरवाज़े पर अपनी ऊँटनी बिठा ही रहा था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की निगाह इस पर पड़ गई। वो मुसलमानों की एक जमात के दरमियान जंग बदर में अल्लाह के अता करदा एज़ाज़ व इकराम के मुताल्लिक़ बातें कर रहे थे। उन्होंने देखते ही कहा, यह कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमैर किसी बुरे ही इरादे से आया है। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर अपनी तलवार हमाइल की आया है। आपने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। उमैर आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तलवार के पर तले को इसके गले के पास से पकड़ लिया और अंसार के चंद अफराद से कहा कि तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वहीं बैठ जाओ और आपके ख़िलाफ़ इस खबीस के ख़तरे से चौकन्ना रहो, क्योंकि ये काबिल इत्मीनान नहीं है। इसके बाद वो उमैर को अंदर ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत देखी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी गर्दन में इसकी तलवार का पर तला लपेट कर पकड़े हुए हैं, तो फरमाया, उमर इसे छोड़ दो और उमैर तुम करीब आ जाओ। इसने करीब आकर कहा, आप लोगों को सुबह व खैर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे तहिया से मुशर्रफ़ किया है जो तुम्हारे इस तहिया से बेहतर है, यानी सलाम से जो अहले जन्नत का तहिया है। इसके बाद आपने फरमाया, है उमैर तुम क्यों आए हो? इसने कहा, ये कैदी जो आप लोगों के कब्ज़े में है इसके लिए आया हूँ, आप लोग इसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। आपने फरमाया, फिर ये तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? उसने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे कि ये हमारे कुछ काम ना आ सकें। आपने फरमाया, सच सच बताओ क्यों आए हो? इसने कहा, बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आया हूँ। आपने फरमाया, नहीं बल्कि तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम में बैठे और कुरैश के जो मकतूलीन कुएं में फेंके गए हैं इनका तज़किरा किया। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मेरे अहल व अयाल ना होते तो मैं यहाँ से जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। इस पर सफ़वान ने तुम्हारे कर्ज और अहल व अयाल की ज़िम्मेदारी ली, बशर्तिया तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन याद रखो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हाइल है। उमैर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास आसमान की जो ख़बर लाते थे और आप पर जो वही नादल होती थी उसे हम
जुटला दिया करते थे, लेकिन ये तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफ़वान के सिवा कोई मौजूद न था। इसलिए वल्लाह मुझे यकीन है कि ये बात अल्लाह के सिवा और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचाई। बस अल्लाह की हम है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मकाम तक हक कर पहुँचाया। फिर उमैर ने कलमा हक की शहादत दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को मुखातिब करके फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। इधर सफ़वान लोगों से कहता फिर रहा था कि ये खुशखबरी सुन लो कि चंद ही दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जो बदर के मसाइब भुलवा देगा। साथ ही वो आने जाने वालों से उमैर की बाबत पूछता भी रहता था। बिलाखिर उसे एक सवार ने बताया कि उमैर मुसलमान हो चुका है। ये सुनकर सफ़वान ने कसम खाई कि इससे कभी बात ना करेगा और ना कभी इसे नफ़ा पहुँचाएगा। इधर उमैर ने इस्लाम सीख कर मक्के की राह ली और वहीं मुकीम रहकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की। इनके हाथ पर बहुत से लोग मुसलमान हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाने के बाद यहूद के साथ जो मुआहदा फरमाया था, इसकी दफ़ात पिछले सफ़ात में ज़िक्र की जा चुकी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इस मुआहदे में जो कुछ तय पा गया है वो नाफिज रहे। चुनांचे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया जो इस मुआहदे से की इबारत के किसी एक हर्फ के भी खिलाफ हो। लेकिन यहूद जिनकी तारीख़ गदर व खयानत और अहद चिकनी से पुर है, वो बहुत जल्द अपने कदीम मिजाज की तरफ पलट गए और मुसलमानों की सफ़ों के अंदर देसियाकारी, साजिश, लड़ाने भिड़ाने और हंगामे और इज़्तिराब बपा करने की कोशिशें शुरू कर दी। लगे हाथों एक मिसाल भी सुनते चलिए। इब्न इसाक का बयान है कि एक बुढ़िया यहूदी शाश बिन कैस जो कब्र में पाँव लटकाए हुए था, बड़ा ज़बरदस्त काफर था और मुसलमानों से सख्त अदावत व हसद रखता था। एक बार सहाबा कराम की एक मजलिस के पास से गुजरा जिसमें औस व खज़रज दोनों ही कबीले के लोग बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। इसे ये देख कर कि अब इनके अंदर जाहिलियत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत व इज्तमाइयत ने ले ली है और इनकी देरीना शकररंजी का खात्मा हो गया है, सख्त रंज हुआ। कहने लगा, वो इस दयार में बनु कैला के अशराफ मुतहद हो गए हैं। बाखुदा इन अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुजर नहीं। चुनाचा इसने एक नौजवान यहूदी को जो इसके साथ था हुक्म दिया कि इनकी मजालस में जाए और इनके साथ बैठकर फिर जंगे बुआस और इसके पहले के हालात का जिक्र करे और इस सिलसिले में दोनों जानब से जो अशार कहे गए हैं कुछ इनमें से सुनाए। इस यहूदी ने ऐसा ही किया। इसके नतीजे में औस और खजरज में तू मैं शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर फ़ख्र जताने लगे, हत्ता कि दोनों कबीलों के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठकर रोकदा शुरू कर दी। फिर एक ने ऐसा मदे मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम इस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। मकसद ये था कि हम इस बामी जंग के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी है। इस पर दोनों फरीकों को ताव आ गया और बोले, चलो हम तैयार हैं, हरा में मुकाबला होगा। हथियार और लोग हथियार लेकर हरा की तरफ निकल पड़े। करीब था कि खूनरेज़ जंग हो जाती, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुहाजिरीन सहाबा को हमरा लेकर झट इनके पास पहुँचे और फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे रहते हुए जाहिलियत की पुकार, और वो भी इसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा चुका है और इसके ज़रिए तुमसे जाहिलियत का मामला काट कर और तुम्हें कुफर से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है। आपकी नसीहत सुनकर सहाबा इकराम को एहसास हुआ कि इनकी हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की एक चाल थी। चुनाचा वो रोने लगे और औस और खजरज के लोग ये दूसरे से गले मिले। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इताअत शार फरमा बरदार बनकर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ने इनके दुश्मन शाश बिन कैस की अयारी की आग बुझा दी थी। ये एक नमूना इन हंगामों और इज़्तिराब का जिन्हें यहूद मुसलमानों की सफ़ों में बपा करने की कोशिश करते रहते थे, और ये है एक मिसाल इस रोड़े की जिसे यहूदी इस्लामी दावत की राह में अटकाते रहते थे। इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बना रखे थे
वो झूठे प्रोपेगंडे करते थे। सुबह मुसलमान होकर शाम को फिर काफिर हो जाते थे, ताकि कमज़ोर और सादा लोग किस्म के लोगों के दिलों में शक और शुबे के बीज बो सकें। किसी के साथ माली ताल्लुक़ होता और वो मुसलमान हो जाता तो इस पर मईशत की राहें तंग कर देते। चुनांचा अगर इसके ज़िम्मा कुछ बकाया होता तो सुबह व शाम तकाजे करते, और अगर ख़ुद इस मुसलमान का कोई बकाया इन पर होता तो उसे अदा न करते, बल्कि बातिल तरीके पर खा जाते और कहते कि तुम्हारा कर तो हमारे ऊपर उस वक़्त था जब तुम अपने आबाई दीन पर थे, लेकिन अब जब कि तुमने अपना दीन बदल दिया है तो अब हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। वाज़ेह रहे कि यहूद ने ये सारी हरकतें बदर से पहले ही शुरू कर दी थीं और इस मुआहदे के अलरगम शुरू कर दी थी जो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रखा था। इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का ये हाल था कि वो इन यहूद की हिदायत याबी की उम्मीद में इन सारी बातों पर सब्र करते जा रहे थे। इसके अलावा ये भी मतलब था कि इस इलाके में अमन और सलामती का माहौल बरकरार रहे। जब यहूद ने देखा कि अल्लाह ने मैदान में बदर में मुसलमानों की ज़बरदस्त मदद फरमाकर इन्हें इज़्ज़त और शौकत से सरफराज फरमाया और इनका रोब और दबदबा दूर और नज़दीक हर जगह रहने वालों के दिलों पर बैठ गया है, तो इनकी अदावत और हसद की हांडी फट पड़ी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला शर व अदावत का मुजाहरा किया और ऐलान बगावत व एज़ार रसानी पर उतर आए। इनमें सबसे ज़्यादा कीनातोज़ और सबसे बढ़कर शरीर काब बिन अशरफ था, जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है। इसी तरह तीनों यहूदी कबाइल में से सबसे ज़्यादा बदमाश बनु कैनका का कबीला था। ये लोग मदीने ही के अंदर रहते थे। इनका मोहल्ला इन्हीं के नाम से मौसूम था। ये लोग पेशे के लिहाज से सुनार, लोहार और बर्तन साज थे। इन पेशों के सबब इनके हर आदमी के पास वाफर मकदार में सामान जंग मौजूद था। इनके मर्दान जंगल की तादाद इनके मर्दाने जंगी की तादाद 700 थी और वो मदीने के सबसे बहादुर यहूदी थे। उन्होंने सबसे पहले ऐश छिकने की तफसील ये है, जब अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया तो इनकी सरकशी में शिद्दत आ गई। उन्होंने अपनी शरारतों, खबास्तों और लड़ाने भिड़ाने की हरकतों में वसअत इख्तियार कर ली और खल्फ शार पैदा करना शुरू कर दिया। चुनांचा जो मुसलमान इनके बाज़ार में जाता, इससे वो मजाक व इस्तेज़ा करते और उसे अजियत पहुँचाते, हत्ता कि मुसलमान औरतों से भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस तरह जब सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो गई और इनकी सरकशी खासी बढ़ गई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जमा फरमा कर वाज़ व नसीहत की और रुश्द व हिदायत की दावत देते हुए जुल्म व बगावत के अंजाम से डराया। लेकिन इनकी बदमाशी और गुरूर में कुछ और ही इजाफा हो गया। चुनांचा इमाम अबी दाऊद वग़ैरह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत की है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी और आप मदीना तशरीफ़ लाए तो बनु कैनका के बाज़ार में यहूद को जमा किया और फरमाया, ए जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसी ही मार पड़े जैसी कुरैश पर पड़ चुकी है। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इस बिना पर खुद फरेबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मुठभीड़ कुरैश की अनाड़ी और नाआशनाए जंग लोगों से हुई थी और तुमने उन्हें मार लिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हो गई तो पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हें पाला न पड़ा था। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, इन काफरों से कह दो कि अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे और वो बुरा ठिकाना है जिन दो ग्रोहों में टक्कर हुई, इनमें तुम्हारे लिए निशानी है। एक ग्रोह वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफर था। ये इनको आँखों देखने में अपने से 2 गुना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसकी ताईद चाहता है करता है। इसके अंदर यकीनन नज़र वालों के लिए इबरत है। बहरहाल बनु कैनका ने जो जवाब दिया था इसका मतलब साफ साफ ऐलान जंग था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुस्सा पी लिया और सब्र किया। मुसलमानों ने भी सब्र किया और आने वाली हालात का इंतज़ार करने लगे। उधर इस नसीहत के बाद यहूद बनु कैनका की जुर्रत
जुर्रत रिंदाना और बढ़ गई। चुनाचा थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उन्होंने मदीने में बुलवा और हंगामा बपा कर दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली और अपने ऊपर ज़िंदगी की राह बंद कर ली। इब्न हशाम ने अबू औन से रिवायत की है कि एक अरब औरत बनु कैनका के बाज़ार में कुछ सामान लेकर आई और बेचकर किसी ज़रूरत के लिए एक सुनार के पास जो यहूदी था बैठ गई। यहूदियों ने इसका चेहरा खुलवाना चाहा मगर इसने इनकार कर दिया। इस पर इस सुनार ने चुपके से इसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ बांध दिया और इससे कुछ खबर न हुई। जब वो उठी तो इससे बेपर्दगी हो गई तो यहूदियों ने कहका लगाया। इस पर उस औरत ने चीख व पुकार मचाई, जिसे सुनकर एक मुसलमान ने इस सुनार पर हमला किया और उसे मार डाला। जवाबन यहूदियों ने इस मुसलमान पर हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद मकतूल मुसलमान के घर वालों ने शोर मचाया और यहूद के खिलाफ मुसलमानों से फरियाद की। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान और बनु कैनका के यहूदियों में बुलवा हो गया। इस वाक़े के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। आपने मदीने का इंतज़ाम अबू लबाना बिन अब्दुल मंज़र को सौंपा और ख़ुद हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का फिर फेरा देकर अल्लाह के लश्कर के हमरा बनु कैनका का रुख किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो घड़ियों में कला बंद हो गए। आपने इनका सख्ती से मुहासरा कर दिया। ये जुमा का दिन था और शवाल 2 हिजरी की 15 तारीख 15 रोज़ तक यानी हलाल ज़िलक़दा के नमूदार होने तक मुहासरा जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया, जिसकी सुन्नत ही ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त व हज़ीमत से दो चार करना चाहता है तो उनके दिलों में रोब डाल देता है। चुनाचा बनु कैनका ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जान व माल, आल औलाद और औरतों के बारे में जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन सब को बांध लिया गया, लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना मुनाफिकाना किरदार अदा किया और इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त इसरार व इल्हाक किया कि आप इनके बारे में मुआफ़ी का हुक्म सादिर फरमाएँ। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए। वाज़ेह रहे कि बनु कैनका खुज़रज के हलीफ थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर की। इस पर इसने अपनी बात फिर दोहराई, मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपना रुख फेर लिया, लेकिन इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरबान में अपना हाथ डाल दिया। आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गज़बनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आपके चेहरे पर देखी। फिर आपने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, मुझे छोड़। लेकिन ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला, नहीं बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान फरमा दें। 400 खुले जिस्म के जवान और 300 ज़रा पोश जिन्होंने मुझे सुर्ख को स्याह से बचाया था, आप उन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे। वल्लाह मैं ज़माने की गर्दिशों का ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। बिलाखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिक के साथ, जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई एक ही महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया और इसकी खातिर इन सब को जाँ बख्शी कर दी। अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया कि वो मदीने से निकल जाएं और आपके पड़ोस में ना रहें। चुनाचा ये सब अज़राआत शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहाँ अक्सर की मौत वाक़या हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अमवाल ज़ब्त कर लिए, जिनमें से 3 कमानें, 2 ज़िरें, 3 तलवारें और 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाए और माल गनीमत में से खुम्स भी निकाला। गनाइम जमा करने का काम मोहम्मद बिन मुसल्लमा ने अंजाम दिया। एक तरफ सफ़वान बिन उमैया, यहूद और मुनाफिकीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ अबू सुफियान भी कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की अधेड़ बन में रहा था। उधेड़ बन में था, जिसमें
جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو، وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوم کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی کناتا کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ تھی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہوئی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نصیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کی اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کر دیا، اور اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلا دیے، اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کی کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرات القطر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لادے پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ معرکہ بدر واحد کی درمیانی عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو سالبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ نے بنو سلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حد بلال کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا، اور ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب اور دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔